روہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بریکنگ دیں۔ ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 18 پیسے مہنگا ہو کر 169 روپے 12 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ 4 ماہ میں ڈالر 11% مہنگا ہو چکا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے پاکستان کو برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ صنعت کار بھی ڈالر مہنگا ہونے سے پریشان ہو گئے۔ ڈالر کو روپے کے مزید کرارے پنچ، روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ کاروبار کے دوران ڈالر 66 پیسے مہنگا ہو کے 169 روپے 60 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پہ پہنچا تو ایکشن بھی ہو گیا، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 60 پیسے سستا ہو کر 169 روپے پر آ گیا۔ کاروبار کے اختتام پر ڈالر 18 پیسے کے اضافے سے 169 روپے 12 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ معاشی ماہر مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ 4 ماہ میں روپے کی قدر 11% گر چکی ہے، جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ بڑھا ہے۔ ڈالر مہنگا ہونے سے تعمیراتی شعبہ اور دیگر سیکٹر بھی متاثر ہیں۔ میں 2021 سے جو ہے یہ اب تک جو ہے تقریباً 11% جو ہے روپے کی قدر گر چکی ہوئی ہے۔ یہ 11% کوئی تفریح میں نہیں گرائی، اس کے پیچھے کچھ اثرات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا تجارتی خسارہ وہ بڑھا۔ اب تجارتی خسارہ 2 چیزوں سے بڑھا، ایک تو یہ کہ حجم بڑھا تجارت میں، اور دوسرا یہ کہ عالمی مارکیٹ میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے ہر چیز پہ، مطلب ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو گئی ہوئی ہے۔ اگر آپ خود نری تیل اٹھائیں، کھانے پینے کی چیزیں اٹھائیں، خام تیل اٹھائیں، لویا اٹھائیں، پلاسٹک اٹھائیں، پھر اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے جو مال بردار جہاز۔ $1000 میں جو چائنا سے جہاز آتا تھا وہ $9000 میں آ رہا ہے۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے ڈالر کی قیمت میں تیزی سے اضافہ کاروبار کے لیے نقصان دہ ہے۔ ڈالر مہنگا ہونے سے درآمدی خام مال کی قیمت بڑھنے سے برآمدی صنعت بھی متاثر ہوگی۔ ہمارا اپنا بھی ایکسپورٹ ہے، ہم بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ملک میں کاٹن پہلے نہیں ہے تو کاٹن باہر سے آ رہی ہے۔ جس نے کاٹن اس وقت لی تھی جب $150 تھا، 152 روپے، آج 70 ہو گئے تو وہ پھنس جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے 4 ماہ میں ڈالر 17 روپے مہنگا ہوا، جس سے پاکستان کے بیرونی قرضوں کے بوجھ میں 1900 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ مہنگائی کے ستائے غریب عوام پر ایک اور مشکل آن پڑی۔ ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ڈالر کی بڑھتی قیمت اور مہنگائی کے خلاف تاجر برادری اور شہری پھٹ پڑے۔ مہنگائی کے ستائے غریب عوام پر ایک اور مشکل آن پڑی۔ ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ڈالر کی بڑھتی قیمت اور مہنگائی کے خلاف تاجر برادری اور شہری پھٹ پڑے۔ ڈالر کی اونچی اڑان سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا، جس پر شہری بھی پریشان دکھائی دیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے ہی منہ زور مہنگائی سے غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا، اب ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا۔ ڈالر کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے یا کہ مہنگائی رکے۔ دوسرا نمبر یہ جو ٹیکس ہے نا جی، ٹیکس کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ تاجر 1.5 مرلے کا گھر ہے جس کا، اس کو بھی ٹیکس آ رہا ہے۔ ڈالر مہنگا ہونے پر کاروباری لوگ بھی پریشان دکھائی دیے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ڈالر مہنگا ہوتے ہی ادویات، اشیاء ضروریہ سمیت سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے۔ کسی دور میں اتنی مہنگائی نہیں دیکھی جتنی اس دور حکومت میں مہنگائی ہے۔ چمڑے کے پروسیس میں جو ہے وہ کیمیکل جو استعمال ہوتے ہیں وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں، جب وہ باہر سے آئیں گے تو ڈالروں میں ہی آئیں گے نا، تو ڈالر مہنگا ہونے سے وہ کیمیکل مہنگے ہو گئے، چمڑے کی کاسٹ مہنگی ہوگی، جوتی مہنگی ہوگی۔ پہلے اتنی مہنگائی ہے کہ لوگ اپنا راشن پورا نہیں کر پا رہے، اور اب آگے جا کے لوگ خریداری کیسے کریں گے؟ دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کو کوئی کان تک جوں تک نہیں سکتی، گورنمنٹ تو بدمست ہے۔ تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث پہلے ہی کاروبار ٹھپ پڑے ہیں، اب ڈالر مہنگا ہونے سے مزید کاروبار کو نقصان ہوگا، حکومت کچھ خیال کرے۔ ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ شہری حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب عوام کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ ڈالر مہنگا ہونے کے باعث سونے کے ریٹس بھی بڑھ گئے۔ 24 کیرٹ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1500 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,12,000 روپے سے بڑھ کر 1,13,500 روپے ہو گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ڈالر مہنگا ہونے کے باعث سونے کے ریٹس بھی بڑھ گئے ہیں۔ 24 کیرٹ سونے کی فی تولہ قیمت 1500 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,12,000 روپے سے بڑھ کر 1,13,500 روپے ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ ماجد کلاسرا سے۔ جی ماجد، بتائیے گا سونے کے ریٹس میں اضافہ ہو گیا ہے؟
महंगा होने के साथ अगर हम बात करें सोने की, तो सोने के रेट्स में भी जो है वो इजाफा हो चुका है। अगर हम बात करें 24 कैरेट सोने के फी तोला कीमत की, तो उसकी कीमत में जो है वो 1500 रुपए का तक का इजाफा हुआ है। पहले जो 24 कैरेट सोने की कीमत थी 1,12,000 से बढ़कर 1,13,500 रुपए हो गई है। इसके साथ साथ अगर हम 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत की बात करें तो उसमें 1500 रुपए तक का इजाफा हुआ है। 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 1,02,500 रुपए से बढ़कर 1,04,000 रुपए हो गई है। दुकानदार हजरात हमारे साथ मौजूद होंगे जो सोने का कारोबार भी करते हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, डॉलर की वजह से रेट्स में एक दफा फिर से होशुबा इजाफा हुआ है, क्या कहें? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इंटरनेशनल मार्केट जो है गोल्ड की तकरीबन ऑलमोस्ट वहीं पे ही है जहाँ पे ऑलरेडी पहले थी, लेकिन चूंकि हमारी पैसे की डिवैल्यूएशन हो गई है और डॉलर की जो है वो प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई हैं, तो इस वजह से जो है गोल्ड की जो प्राइसेस हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो उसकी वजह से आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में ऑलरेडी जो है वो काफ़ी क्राइसिस हैं, पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ अशियाए ज़रूरियात की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। तो उसकी वजह से आम लोगों के लिए, जो कॉमन ऑर्डिनरी मैन है, उसके लिए सोना परचेज़ करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो। दूसरी जानब यहाँ पर जो शादी ब्याह के लिए आने वाले जो शहरी हैं, जो सोना लेने के लिए आए हुए हैं, उनकी भी मुश्किलात काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। उनका कहना था कि आते हैं सोने का रेट्स कुछ और होते हैं, अगले दिन आते हैं तो सोने के रेट्स में मजीद इजाफा हो जाता है। तो शहरी भी हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि डॉलर्स के रेट्स को जो है वो किसी जगह कंट्रोल किया जाए, बढ़ती हुई महंगाई को जो है वो। बहुत शुक्रिया माजिद क्लासरा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरदार होशियार, हुकूमत फिर से पेट्रोल बम गिराने को तैयार। ओगरा की हाई स्पीड डीजल 10.5 रुपए, लाइट डीजल और मट्टी का तेल 5.5 रुपए और पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़। वजारत खजाना आज वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान करेंगे। एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने को हुकूमत तैयार है। ओगरा की हाई स्पीड डीजल 10.5 रुपए, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 5.5 रुपए और पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ है। वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान करेगी। खबरदार होशियार, हुकूमत फिर से पेट्रोल बम गिराने को तैयार। बहावलपुर में चंद रोज में डीएपी खाद की कीमतों में 200 रुपए का इजाफा हो गया है। काश्तकारों और दुकानदारों का कहना है कि मुल्क में अशिया की कीमतों में इजाफे की कुछ समझ नहीं आ रही। जो है 200 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कभी बढ़ा देते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें नहीं बढ़ते। और वो सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि किसी को कोई पैसे बैक नहीं मिलते, जो कहते हैं इतना कूपन दे रहे हैं, किसी बंदे को नहीं मिलता। किसान को रिलीफ नहीं मिल रहा, जिस वजह से किसान तो परेशान है। वो कहते हैं जी ना हुकूमत हमें सही तरीके से रिलीफ दे रही है, ना यहाँ पे जो बड़े बड़े डीलर बैठे हैं वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से रेट लगा के चीज़ भेज देते हैं। डॉलर का रेट बढ़ गया है तो इससे तो डीएपी में और महंगाई का इजाफा होगा। तो अब आगे गंदम की फसल की बिजाई का टाइम आ रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर कुछ स्टेप ले। हर दूसरे चौथे दिन जो है। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। पंजाब भर के एडिशनल और सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादले हुए हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज महमूद हारून खान का लाहौर से मुल्तान में तबादला कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज शहबाज अहमद का बहावलपुर से बहावल नगर में तबादला हुआ है। एडिशनल सेशन जज मियां मसूद हुसैन शुजाआबाद से रहीम यार खान में तैनात कर दिए गए हैं। एडिशनल सेशन जज एहसन महबूब बुखारी का लाहौर से लिया कंज्यूमर कोर्ट में तबादला किया गया। एडिशनल सेशन जज रफाकत अली गोंदल का लाहौर से भक्कर कंज्यूमर कोर्ट में तबादला हुआ है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अरशद अंजुम का शुजाबाद से बहावलपुर कंज्यूमर कोर्ट में तबादला किया गया है। एडिशनल सेशन जज इशफाक अहमद राना रावलपिंडी से मियांवाली कंज्यूमर कोर्ट में तैनात हुए हैं। एडिशनल सेशन जज जलील अहमद का कबीरवाला से रिजी खान कंज्यूमर कोर्ट में तबादला कर दिया गया है। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इंतखाबात कॉर्पोरेट क्लास और एसोसिएट क्लास के उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चैम्बर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इंतखाबात कॉर्पोरेट क्लास और एसोसिएट क्लास के उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चैम्बर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद, कहिएगा हतमी फहरिस्त में किन किन के नाम शामिल हैं? जी बिल्कुल, हतमी फहरिस्त में कॉर्पोरेट क्लास से मोहम्मद नदीम शाकिर का, उस्मान महमूद राजपूत, आसिफ अब्बास, अदील खालिद, मुरीद अहमद, नईम और मंसूर इकबाल कुरैशी के नाम शामिल है। जबकि एसोसिएट क्लास से
मरकजी सदर हैं हाफिज यूनुस साहब बावलपुर अंजुमन ताजरान के, मोहम्मद अरशद, शेख मोहम्मद खुर्रम, इजहार मोहम्मद और जवाद बंदेश शाह, इनके नाम शामिल हैं। इनके साथ सैयद मुजम्मल हुसैन और मलक मोहम्मद अली और माजिद हबीब, ये भी एग्जेक्टिव रुकन मुंतखब हुए हैं बिला मुकाबला। जबकि खवातीन की जो मखसूस नशिस्त है उस पर मोहतरमा शैला एहसान जो कि PHA की भी चेयरपर्सन है, बिला मुकाबला एग्जेक्टिव रुकन मुंतखब हुई हैं। चैम्बर के ये जो आला अहदेदारान यानी कि सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर के जो कागजात की नामजदगी हैं वो 22 सितंबर तक वसूल किए जाएंगे। उसके बाद इस हवाले से फैसला किया जाएगा कि चैम्बर का नया सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर कौन होगा। तो ये कॉर्पोरेट क्लास और एसोसिएट क्लास के उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। आज 15 सितंबर को उम्मीदवारान की जानिब से अपनी कागजात नामजदगी वापस लिए जाने की हतमी तारीख थी। आज जिन जिन लोगों ने हतमी तौर पर कागजात नामजदगी वापस लिए, उसके बाद जो हतमी लिस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंतजामिया की जानिब से लगाई गई है वो नाम हमने आपको बता दिए हैं। जी बेहतर महमूद जहीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 782वें उर्स की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। सजादा नशीन दरगाह मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अंदरूनी इंतशार और बैरूनी यलगार से बचने और कोरोना की चौथी लहर से महफूज रहने के लिए खसूसी दुआ कराई। हमें रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 782वें सालाना उर्स की इख्तितामी तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें सजादा नशीन दरगाह मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने खसूसी दुआ कराई। इनका कहना था कि या अल्लाह दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिला, अफगानिस्तान में अमन फरमा, या मौला हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार के अज़ाइम को खाक में मिला दे। भारत फेक न्यूज के जरिए हमारे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, या अल्लाह कश्मीर और फलस्तीन को आज़ादी नसीब फरमा। पाकिस्तान को महफूज फरमा, अंदरूनी और बैरूनी इंतशार और यलगार, अंदरूनी इंतशार और बैरूनी यलगार से महफूज फरमा और हमारे मुखालिफिन के अज़ाइम को खाक मिला। इनका कहना था कि कोरोना की वजह से माजी की तरह की नशिस्तों को मुनक्किद नहीं कर सके। मौलिक वायरस की वजह अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 782वें सालाना उर्स की इख्तितामी तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें सजादा नशीन दरगाह मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने खसूसी दुआ कराई। इनका कहना था कि या अल्लाह दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिला, अफगानिस्तान में अमन फरमा, या मौला हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार के अज़ाइम को खाक में मिला दे। भारत फेक न्यूज के जरिए हमारे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, या अल्लाह कश्मीर फलस्तीन को आज़ादी नसीब फरमा। पाकिस्तान को महफूज फरमा, अंदरूनी और बैरूनी इंतशार और यलगार, अंदरूनी इंतशार और बैरूनी यलगार से महफूज फरमा और हमारे मुखालिफिन के अज़ाइम को खाक मिला। इनका कहना था कि कोरोना की वजह से माजी की तरह की नशिस्तों को मुनक्किद नहीं कर सके, मौलिक वायरस की वजह नहीं दे सके। अल्लाह दिलों के भेद जानता है, ज़ारीन मायूस ना हो। रब्बुल आलमीन अकीदत और मोहब्बत के ये नजराने और फूल जो निशावर किए जाते हैं और किए जा रहे हैं उन्हें कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन आप सबकी हाजिरी कबूल फरमा दे। दुआ कराते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि या अल्लाह कश्मीर फलस्तीन की बेटियों को महफूज फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ और हमें कोरोना की चौथी लहर से महफूज फरमा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में 3 नए अंडरपास बनाने का फैसला। ग्रॉस मंडी, टिम्बर मार्केट, तुगलक टाउन में अंडरपास बनेंगे। ग्रॉस मंडी अंडरपास पर 25 करोड़, लक्कर मंडी अंडरपास पर 18 करोड़, जबकि तुगलक टाउन अंडरपास पर 33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुल्तान दमदमा पर शहरियों के लिए कॉफी शॉप बनाने का भी फैसला किया गया है। मंसूबों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर मुल्तान का अंडरपास के लिए मुजव्वजा मकामात दमदमा फूड स्ट्रीट का दौरा, मंसूबों का जायजा भी लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में 3 नए अंडरपास बनाने का फैसला किया गया है। ग्रास मंडी, टिम्बर मार्केट, तुगलक टाउन में अंडरपास बनेंगे। ग्रास मंडी अंडरपास पर 25 करोड़, लक्कर मंडी अंडरपास पर 18 करोड़, तुगलक टाउन अंडरपास पर 33 करोड़ खर्च होंगे। मुल्तान दमदमा पर शहरियों के लिए कॉफी शॉप बनाने का भी फैसला किया गया है। मंसूबों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर मुल्तान का अंडरपास के लिए मुजव्वजा मकामात दमदमा फूड स्ट्रीट का दौरा, मंसूबों का जायजा भी लिया गया है।
ग्रॉस मंडी अंडरपास पर 25 करोड़, लक्कर मंडी अंडरपास पर 18 करोड़, तुगलक टाउन अंडरपास पर 33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुल्तान में 3 नए अंडरपास बनाने का फैसला हुआ है। लिया में महकमा हाउसिंग के 231 प्लॉट्स की नीलामी का अमल जारी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद, बिडिंग हो रही है, कितनी बोली लगाई गई है? हाउसिंग के 231 प्लाट की नीलामी के हवाले से आज म्यूनसिपल कमेटी लिया के अंदर बोली का जो है अमल मुकम्मल किया गया, जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर लिया नियाज मुगल, इससे सियासत डायरेक्टर महकमा हाउसिंग राना साहब और डिप्टी डायरेक्टर महकमा हाउसिंग ने यहाँ पर बोली के निज़ाम की, यहाँ पर खुद मॉनिटरिंग की और यहाँ पर खुद भी मौजूद रहे। असिस्टेंट कमिश्नर सर से बात करते हैं। सर, इस वाले से बताइएगा कितने प्लाट की बोली की जा रही है? नीलामी का सिलसिला जारी है। इसमें मुख्तलिफ नोयत के 231 प्लाट्स हैं, जिसमें एरिया डेवलपमेंट स्कीम नंबर 2 है और इसकी एक्सटेंशन के फेज़ 2 हैं, 3 हैं और इसके बाद हमारी 3 मरला स्कीम है। तो इसमें रिहायशी प्लाट्स भी हैं, कमर्शियल प्लाट्स भी हैं और मोहल्ला शॉप्स भी हैं। तो ये काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शफाफ तरीके से ये नीलामी जारी है। जी बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जा रहा है। सर, आप बताइएगा इससे कब कब नीलामी होती है और इससे महकमे को क्या एडवांटेज होता है? इसमें हमें हर साल इसका इनकम टारगेट मिलता है कि रिकवरी इतनी करनी है, तो उस हिसाब से हमने ये फर्स्ट हम कर रहे हैं इसकी ऑक्शन। इसके बाद हमारा 2 फेज़ और होंगे ऑक्शन इस साल में। तो इस साल में हमारा जो है 200 मिलियन का टारगेट है और अभी तक जो हमने ऑक्शन की है वो तकरीबन 70 मिलियन तक हो चुकी है और अभी तक जारी है। ये अभी सिर्फ हमने 25 प्लाट ऑक्शन किए हैं सिर्फ। बोली का निज़ाम जो जारी है, इस वजह से असिस्टेंट कमिश्नर और डायरेक्टर साहब का यही बताना है कि इससे यकीनन जहां महकमे का फायदा होता है वहीं पर जो पब्लिक है उसको बेहतर रेट पर जो है प्लाट मिल सकते हैं। बेहतर। जाहिद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान के नवाही इलाके ताजगढ़ का इकलौता फिल्ट्रेशन प्लांट बंद कर दिया गया। अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया। देखिए आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान के नवाही इलाके ताजगढ़ का इकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 8 माह से गैर फाल है। इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मेरा नाम राना सजाद अहमद है, मैं ताजगढ़ का रिहायशी हूँ। ये फिल्टर जो प्लांट हमने अपनी मदद आपके तहत हमने इलाका मकीनों ने मिलकर लगाया था, मगर 8 माह से ये ख़राब है अदम फंड दस्तियाबी की वजह से। हमने अपने हुकाम बाला से कई बार रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्तें भी दी हैं, मगर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों ने इंतजामिया की बेहिसी पर एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया लेकिन सुनवाई ना हो सकी। बात तो यह है कि पानी हमारे लिए जो है एक नेमत है और साफ पानी हो तो क्या ही बात है। अभी तक बहुत सारी एप्लीकेशन देने के बावजूद हुक्म बाला की इस तरफ जो है किसी किस्म की तवज्जो नहीं हुई। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि इसको काइंडली थोड़ा सा ठीक किया जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि साफ पानी की अदम दस्तयाबी से बच्चे बड़े बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। वो 5 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाते हैं। जो इलाका के लोग हैं ये बेचारे यहाँ से कोई 5 किलोमीटर जाता है, कोई 8-8 10-10 किलोमीटर से जाके ये अपने लिए साफ पानी लेके आते हैं। हमने कितनी मरतबा हुक्म बाला से अपील की है मगर इस पे कोई रद्द अमल नहीं है उनका। इलाके के इकलौते फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी बहाल किया जाए ताकि वो भी साफ पानी से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। डेरा गाजी खान में आबादी बढ़ने की शरह 2.8% तक पहुंच गई। छोटा खानदान खुशहाली की जमानत के हवाले से डीजी खान में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब मुख्तार मसूद का कहना है कि डीजी खान के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं रजा मलिक। रजा मलिक, कहिएगा कितने फंड जारी हुए हैं? जी बिल्कुल, आबादी और वसाइल में जो तनासब है उसमें आबादी बढ़ने की जो शरह है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जैसे वसाइल हैं वो कम हो रहे हैं। पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से डेरा गाजी खान में एक खसूसी सेमिनार का जो है वो इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर मुख्तार मसूद यहाँ पहुँचे। सर, पंजाब की जो आबादी है वो 2.4% की रेशो से जो है वो बढ़ रही है। टारगेट क्या है और डेरा गाजी खान में जो पॉपुलेशन वेलफेयर का ऑफिस था उसको मिसमार कर दिया गया, तो क्या मतलब सूरत हाल है इस हवाले से? इस वक्त आबादी हमारे बड़े मसाइल में से बल्कि तरजीही मसाइल में से एक है और डीजी खान में भी जो जैसे आपने कहा हमारी पंजाब की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4 है और डीजी खान में पंजाब की 2.1 है, पाकिस्तान की 2.4 है और डीजी खान ज़िला की 2.8 है।
तो इस हवाले से यहाँ पे तरजीही बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है और इसीलिए हमने ज़रूरी समझा महकमे की तरफ से कि मैं ख़ुद यहाँ आके सूरत हाल का जायज़ा लूँ, जिन सहूलियात में कमी देखी गई है उनको जल्दी कैसे पूरी किया जा सकता है। और दूसरा, हमने अभी आके देखा कि जब ये नई बिल्डिंग हस्पताल की बन रही थी उसमें हमारा एक सेंटर की इमारत को मजबूरन गिराना पड़ा, लेकिन उसमें एक तो ये है कि जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें हमारे लिए जगह गायनी वार्ड के बिल्कुल साथ दी जाएगी। टेक्निकल सर्विसेज की फराहमी के हवाले से जो है वो फंड्स भी जो है जारी कर दिए रज़ा मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान के रेस्क्यू एहलकार पंजाब एमरजेंसी रेस्क्यू चैलेंज जीतने के लिए पुरअज़्म। रेस्क्यू मुकाबलाजात 8 अक्टूबर को लाहौर में मुनक़िद होंगे। सूबा भर से रेस्क्यू टीमें शिरकत करेंगी। तफसीलात के लिए यासिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर के रेस्क्यू एहलकारों में कौन है नंबर 1? फैसला पंजाब एमरजेंसी रेस्क्यू चैलेंज में होगा। रेस्क्यू मुकाबले 8 अक्टूबर को लाहौर में मुनक़िद होंगे, जिसमें तमाम इजलास से रेस्क्यू टीमें हिस्सा लेंगी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक टीमों की सिलेक्शन के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबलाजात 22 सितंबर को तमाम इजला में मुनक़िद होंगे, जिसके बाद बेहतरीन टीमें लाहौर रवाना की जाएंगी। नंबर 1 पे होगी वेल रेस्क्यू, नंबर 2 पे होगी हार्ट रेस्क्यू, और वेल रेस्क्यू में से पेशेंट हमने वेल में से निकालना होगा, वो हमें टास्क दिया जाएगा और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट तैयारी है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फाइट करेंगे और मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमरजेंसी मुकाबलों में ऊंची बिल्डिंग से मरीजों को रेस्क्यू करना, फायर इमरजेंसी और कुएं की इमरजेंसी से निपटने के अमली मुजाहरे शामिल होंगे। मुल्तान के रेस्क्यू एहलकारों का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस की जा रही है। मुकाबले जीतने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इसका पर्पज़ ये है कि रेस्क्यू चैलेंज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुल्तान को हम विन करवाएंगे। और इसकी हमारी ये टाइमिंग है 8 से 5 बजे तक हम ड्रिल्स करते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं ताकि हम उधर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और इंशाल्लाह हम विन करें। पंजाब एमरजेंसी रेस्क्यू चैलेंज हर साल मुनक़िद किया जाता है, जिसका मकसद रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी का जायजा लेना है। मुल्तान की रेस्क्यू टीम पंजाब एमरजेंसी रेस्क्यू चैलेंज को जीतने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। मियांवाली में मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी की 8वीं बरसी उनके आबाई गांव में मनाई गई। मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी 15 सितंबर 2014 को अपर दीन में बारूदी सुरंग धमाके के दौरान शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। देखिए अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।